بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں لیا میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ ڈسٹرکٹ پریس کلب لیا کے باہر احتجاج میں کارکنان کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مزید بات کریں گے زاہد سرفراز سے۔ جی زاہد بتائیے گا۔ بالکل جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کی کال پر آج لیا کے اندر بھی جماعت اسلامی کے زیر اہتمام مہنگائی کے خلاف یہاں پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پریس کلب لیا کے باہر احتجاجی مظاہرے میں جماعت اسلامی کے کارکنان کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس مظاہرے کے اندر خواتین بھی شریک رہی اور مہنگائی کے خلاف بھرپور یہاں پر نعرے بازی کی گئی۔ ضلع امیر موجود ہیں، سر آج کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جماعت اسلامی کے امیر محترم سراج الحق صاحب کی اپیل پر پورے پاکستان میں پیٹرولیم کی جو بھی ہیں مصنوعات ان کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف آج احتجاج ہو رہا ہے، اور جو بھی پاکستانی عوام کی تنگیاں ہیں ان کے لیے عوام نکلی ہے سڑکوں پر اور احتجاجی نعرے بلند کر رہی ہے۔ جماعت اسلامی لیا کے زیر اہتمام آج یہاں پہ یہ ایک پرامن احتجاجی مظاہرہ تھا، اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت عوام کی زندگیوں میں آسانی لے کر آئے اور یہ جو تنگیوں کا ماحول ہے اس کا خاتمہ کیا جائے۔ تنگیوں کا خاتمہ کیا جائے، سر آپ کیا کہیں گے؟ جی اسی طرح ہے کہ امیر پاکستان کی کال پر پورے ملک کے اندر جو مہنگائی کا طوفان ہے اور خاص کر پیٹرولیم میں اضافہ اور اسی طرح ضرورت اشیاء میں اضافہ، بلوں میں اضافہ، اس پر ہم سراپا احتجاج ہیں۔ جو وقت کے حکمران ہیں ہم کہتے ہیں عوام کے مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے، جو اضافہ ہوا ہے ان کو واپس لیا جائے، ورنہ ہم سراپا احتجاج رہیں گے۔ اور بالکل یہاں پر جو مظاہرین مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حال اضافہ، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اور مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی سراپا احتجاج۔ ڈیرہ غازی خان میں جماعت اسلامی کے کارکنوں نے پریس کلب کے باہر احتجاج کیا۔ مظاہرین نے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے عاشر اشفاق کی اس رپورٹ میں۔ مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاج۔ ڈیرہ غازی خان میں بھی جماعت اسلامی نے پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ جماعت اسلامی کے عہدیداران، رہنما اور کارکنان مظاہرے میں شریک تھے۔ سٹی امیر جماعت اسلامی میجر ڈاکٹر اشرف بزدار نے مظاہرے کی قیادت کی۔ مظاہرین نے کہا کہ مہنگائی نے کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ پیٹرولیم کی مصنوعات کو 300 روپے فی لیٹر پیٹرول کے حساب سے بڑھا دیا گیا، جو عام شہری کے لیے، ایک مزدور رکشے والے کے لیے، ایک عام چھوٹے سے کاروباری آدمی کے لیے جو موٹر سائیکل پہ سفر کرتا ہے اس کی پہنچ سے یہ پیٹرولیم کی مصنوعات دور ہوتی جا رہی ہیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 300 روپے فی لیٹر کے قریب پہنچ چکی ہیں، جو مزدور، رکشے والے اور چھوٹے کاروباری سمیت عام عوام کی قوت خرید سے باہر ہو چکی ہیں۔ عوام پر مہنگائی مسلط کر دی گئی ہے، بجلی کی قیمت بھی بڑھا دی گئی ہے۔ کبھی یہ ہم پر پیٹرول بمپ گراتے ہیں تو کبھی یہ بجلی مہنگی کرتی ہے۔ غریب بیچارہ کس طرح اپنے گھر کے اخراجات پورے کرے؟ میں حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فل فور مہنگائی کو ختم کرے اور جو لوگوں پر مہنگائی کا بم گرایا جا رہا ہے ان کو بند کیا جائے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ نگراں حکومت عام عوام کے متعلق بھی سوچے، عام شہریوں کو بھی ریلیف فراہم کیا جائے۔ کیمرامین مجتبیٰ سرور کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ خانپور میں جماعت اسلامی کا مہنگائی میں اضافہ ہونے پر احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ظالمانہ اضافہ واپس لے۔ حکومت کے اس اقدام سے مزید مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ ہم حکمرانوں کی ان غریب کش پالیسیوں کو مسترد کرتے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی سراپا احتجاج۔ جماعت اسلامی نے ملتان میں چوک کچہری پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ مظاہرے کی قیادت ضلعی امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر صفدر ہاشمی نے کی۔ ملتان میں مظاہرین سے خطاب میں ضلعی امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر صفدر ہاشمی کا کہنا تھا کہ نگراں حکومت نے پیٹرول بم گرایا۔ پی ڈی ایم حکومت نے عوام کا جینا مشکل کر دیا۔ نگراں حکومت سے ریلیف کی توقع تھی مگر وہ بھی ریلیف دینے میں ناکام رہی۔ اشرافیہ کو مراعات دی جاتی ہیں جبکہ غریب طبقہ پس رہا ہے۔ حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ فوری واپس لے۔ تاجر رہنما عمران مانی نے کہا کہ تاجر برادری اس وقت سب سے زیادہ مسائل کا شکار ہے۔ کاروبار ختم ہو رہا ہے، لوگ اپنا سرمایہ یہاں سے منتقل کر رہے ہیں۔ حکومت عام آدمی کے لیے ریلیف پیدا کرے۔ جماعت اسلامی ہارون آباد پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف سراپا احتجاج۔
चौधरी आबिद सरवर का कहना था कि निगरान वजीर आजम ने आते ही क़यामत ढा दी। गरीब आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। हारूनाबाद में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नामंजूर के नारे दर्ज थे। अमीर जमात इस्लामी हारूनाबाद चौधरी आबिद सरवर का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नाकाबिले कबूल है। निगरान वज़ीर आज़म ने आते ही क़यामत ढा दी। गरीब आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। दरिया सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। हेड सुलेमानकी के मकाम पर 2.5 लाख क्यूसिक पानी का रैला मुतवक्के। डीसी बहावल नगर जुल्फिकार अहमद भून ने सैलाब के पेश नजर तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी और दरिया सतलुज में आबादियों को फौरी तौर पर महफूज ठिकानों पर मुंतकिल करने का भी हुक्म जारी कर दिया। खानेवाल में ज़िले और म्यूनसिपल इंतजामिया की गफलत, नाअहली या कुछ और। शहर में करोड़ों की लागत से तामीर तफरीही झील फंक्शनल होने से पहले ही खंडरात में तब्दील हो गई। सस्ती तफरीह से महरूम होने पर शहरी सरापा एहतजाज है। इस पर रिपोर्ट करेंगे नदीम मुगल। खानेवाल में तफरीही झील फंक्शनल होने से पहले ही खंडरात में तब्दील। झील 7.5 करोड़ रुपए की लागत से शहर के वस्त में तामीर की गई थी। शहरी कहते हैं जिला इंतजामिया की नाअहली से तफरीही मकाम से महरूम हो गए हैं। बच्चों ने इसको मैदान बनाया हुआ, ग्राउंड बनाया हुआ है और दुनिया ने सारा दुनिया का कूड़ा क्रिकेट इधर ला कर डाल रहे हैं और बहुत बुरा हाल है। बस इसके बारे में यही कहूँगा और मैं क्या कहूँ। शहरियों का कहना था कि तफरीही झील में नस ट्यूबवेल की मोटरें, पाइप, बिजली का ट्रांसफार्मर, बिजली मीटर और स्ट्रीट लाइट चोरी हो गई, मगर म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान ने कोई कार्रवाई नहीं की। अवाम बड़ी खुश थी, एक चीज़ बनी थी तफरीह के लिए, अवाम आ जाती थी घूमने फिरने के लिए। अब इसकी कोई देखभाल नहीं है इंतज़ामिया से। गुजारिश है कि इसको देखे भाले, वहाँ से चीज़ें चोरी हो जाती हैं, कोई इसको देखने वाला नहीं है और इसको अच्छी तरह देखा जाए और बनाया जाए इसको कोई ऐसा कि तफरीह के लिए अवाम ताकि खुश हो। ये सिटी में बनी हुई है, अवाम करीब थी शहर के। दूसरी तरफ सीईओ म्यूनसिपल कमेटी वकास अहमद का इस हवाले से कहना था कि सब कुछ चोरी जरूर हुआ मगर इसकी तैनाती से पहले इस बारे एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी अजूबा अजीम ही जवाब दे सकती हैं। शहरियों को यकीन है कि वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी इस मामले का फौरी नोटिस जरूर लेंगे। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। मुल्तान में आम इंतखाबात के लिए सफ़बंदी का आगाज शुरू हो गया। मुस्लिम लीग नून ने सूबाई हल्के की सतह पर यूथ कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिए। कोऑर्डिनेटर का तकर्रुर मरियम नवाज शरीफ ने किया। मुल्तान में सदर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग उस्मान खान बाबर का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि यूथ कोऑर्डिनेटर नौजवानों को पार्टी में मुतहरिक करेंगे। यूथ कोऑर्डिनेटर्स का तकर्रुर मरियम नवाज शरीफ ने खुद किया है। नून लीग इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर चुकी है। हम नौजवानों को अपनी इंतखाबी मुहिम का हर अव्वल दस्ता बनाएंगे। सितंबर में नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। उनकी वापसी से नून लीग के इलेक्शन कैंपेन जोर पड़ेगी। आइंदा हुकूमत नून लीग ही बनाएगी। खातून को करंट लगाकर मौत के घाट उतारने का मामला। एडिशनल सेशन जज दुनियापुर ने थाने के मुकदमे की समाअत मुकम्मल करते हुए फैसला सुना दिया। करंट लगाकर बीवी को कत्ल करने वाले शौहर और सुतेले बेटे को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया है। सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया है। खातून को करंट लगाकर मौत के घाट उतारने का मामला है। एडिशनल सेशन जज दुनियापुर ने थाना के मुकदमे की समाअत मुकम्मल करते हुए फैसला सुना दिया। भेरा पुलिस नाकाम, डकैत गैंग बेलगाम। रात गए डकैती की 3 वारदातें, शहरी लाखों रुपए नकदी और मोबाइल फोन से महरूम हो गए। तहसील भेरा के नवाही गांव खान मोहम्मद के करीब डकैती की 3 वारदातें हुई। पहली वारदात में चकवाल का रिहायशी अमीर और मोहम्मद खान, दूसरी वारदात में फलरवान का रिहायशी नदीम और तीसरी वारदात में ब्लॉक 11 सरगोदा का रिहायशी नदीम फट्टान लुट गया। मुलजिमान नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। थाना भेरा पुलिस ने एक वारदात का 1 मुकदमा दर्ज कर लिया जबकि बाकी 2 वारदातों के मुकदमा दर्ज नहीं किए गए। खानपुर में महकमा इनहार के अफसरान इन एक्शन। नहरों से पानी चोरी करने वाले जमींदारों के खिलाफ घेरा तंग। नहर 1L और नहर आब हयात से पानी चोरी करने वाले दर्जनों अफराद पकड़े गए हैं। कार्रवाई शुरू कर दी गई। खानपुर की नहर से पानी चोरी का सिलसिला कई सालों से जारी है। मुकामी जमींदार नहर में कट लगाकर या ट्यूब लगाकर पानी चोरी करते हैं।
मुख्तलिफ मुकामात पर मोगों का साइज बढ़ा करके भी पानी चोरी किया जाता है। SDO अनहार खालिद महमूद ने अपनी टीम के हमरा नहरों का दौरा किया और कार्रवाई की। सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की कमी का मामला। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। सुबह भर में असातिज़ा की असामियां खाली 70,000 से तजावज़ कर गई। तफसीलात बता रही हैं अलिशबा आसिफ से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको आगाह कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की कमी का मामला हल ना हो सका। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। सुबह भर में असातिज़ा की खाली असामियों की तादाद 70,000 से तजावुज़ कर गई है। मुल्तान में चेयरमैन ड्रग कोर्ट मोहम्मद नवीद राना की ज़ेर सदारत मीटिंग। 3 डिवीजन्स के ड्रग इंस्पेक्टर, सेक्रेटरी पंजाब क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड और डायरेक्टर्स ने मीटिंग में शिरकत की। चेयरमैन ड्रग कोर्ट राना मोहम्मद नवीद और सेक्रेटरी पंजाब क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड मुनव्वर खान ने शुरका को खुसूसी हिदायत दी। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे महार इमरान की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन ड्रग कोर्ट मुल्तान राना मोहम्मद नवीद जाली अद्वियात की रोकथाम के लिए सरगर्म। चेयरमैन ड्रग कोर्ट की जेर सदारत सेक्रेटरी पंजाब क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, डायरेक्टर्स और ड्रग इंस्पेक्टर्स की मीटिंग हुई। मीटिंग में प्रोसिक्यूशन को मजीद बेहतर बनाने के हवाले से इकदामात का जायजा लिया गया। चेयरमैन ड्रग कोर्ट का शुरा से खिताब में कहना था कि बच्चों के गैर मेयारी दूध, गैर रजिस्टर्ड और नशावर अद्वियात के मेयार को बेहतर बनाएंगे। मेयारी अद्वियात फरोख्त करेंगे या जो कीमत है उससे ज़्यादा वसूल करेंगे तो उनके खिलाफ अंडर द लॉ कार्रवाई की जाएगी। आज की हमारी मीटिंग अवेयरनेस के हवाले से, प्रोसिक्यूशन हमने किस तरह करनी है उसके हवाले से, मार्केट में जो अद्वियात कम हो रही हैं उनके हवाले से और जायद प्राइस पे जो जायद कीमत पे बेच रहे हैं अद्वियात, मेडिकल स्टोर और फार्मेसीज, उनके खिलाफ एक्शन से मुतल्लिक एक लाएमल तय करने के लिए हम तमाम तीनों डिवीजन के जो कंसर्न ऑफिसर हैं उनको यहाँ पर तलब किए। सेक्रेटरी पंजाब क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड मुनव्वर खान ने कहा कि मीटिंग का एजेंडा दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग, गैर मेयारी और जाली अद्वियात की रोकथाम है। सारा डिस्कस करेंगे कि ये जो हम जेली अद्वियात के लोगों को पकड़ते हैं, हम इनको तमाम चीज़ें इनके साथ डिस्कस करेंगे कि आपने क्या क्या मेजर्स लेनी है कि हम शिकंजा अपना इनके गिर्द कैसे तंग करना है और केसेस को किस तरह से सही लाइन पे ऊपर प्रोसेस करके स्ट्रीमलाइन करके हमने कोर्ट के सामने ले आना है। मीटिंग में कहा गया कि अस्पतालों में मौजूद अद्वियात की मुकम्मल ड्रग लेबॉर्ट्री रिपोर्ट का रिकॉर्ड और अद्वियात के वाफिर स्टॉक की हिफाजत के इंतजाम किए जाएं। फार्मासिस्ट और ड्रग इंस्पेक्टर्स मुकम्मल रिकॉर्ड रखें और जांच पड़ताल करें। मीटिंग में प्रोसिक्यूशन और लॉ ऑफिसर्स ने कानूनी कार्रवाई के हवाले से अहम नुकात पर बात की। मीटिंग में शुरका ने अपने मसाइल और कानूनी पहलुओं बारे तबादला ख्याल भी किया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मार इमरान नवाज। अब आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ में अशाए खुरोनोश की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। छोटा गोश्त 1050, बड़ा गोश्त 550, दूध 110 और दही फी किलो 120 रुपये मुकर्रर कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि अब गिरां फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी ने अशाए खुरोनोश की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मुल्तान में ज़ेरे तामीर सिविल सेक्रेटेरिएट जनूबी पंजाब का मंसूबा सेक्रेटरी सर्विसेज जनूबी पंजाब की ज़ेरे सदारत मंसूबे बारे जायजा इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी DS और SO की शिरकत। सेक्रेटरी सर्विसेज ने सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग की तामीर बारे हफ्तावार प्लान तलब कर लिया। सेक्रेटरी सर्विसेज का कहना था कि एंट्री गेट और फिल्ट्रेशन प्लांट की तामीर की टाइम लाइन दी जाएगी। सोलर सिस्टम की तनसीब के हवाले से सेक्रेटरी एनर्जी पंजाब से राबता किया जाएगा और सेक्रेटरी सर्विसेज की सेक्रेटेरिएट पर लेबर की तादाद बढ़ाने की भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ज़र यूनिवर्सिटी सब कैंपस में शहर सुल्तान की जानिब से एक और इकदाम फिजिबिलिटी स्टडी और रकबे की निशानदही के लिए प्रोफेसर्स का दौरा। डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग के हमरा मुतल्लिका अफसरान और प्रोफेसर्स भी हमरा थे। डिप्टी डायरेक्टर ने कहा कि ज़िले इंतज़ामिया ने रकबे की निशानदही कर दी है। प्रोफेसर्स ने कहा कि रकबे की मुंतकली का मरहला शुरू कर दिया गया है। सरकारी बिल्डिंग में सब कैंपस की आर्जी क्लासेस का अज्जा कर दिया गया है।
जनूबी पंजाब में अब गांव चमकेंगे मुहिम का आगाज कर दिया गया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मोहम्मद अमीन अवैसी ने मुल्तान के मौजा बेलीवाला की यूनियन काउंसिल 110 और 114 में मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जनूबी पंजाब मोहम्मद अमीन अवैसी का कहना था कि हुकूमत ने नजरअंदाज दही इलाकों की सफाई और सीवरेज के लिए इनकलाबी इकदाम उठाया है। अब आपको बताएं, मुल्तान में यौम आज़ादी तकरीबात में तलबा और बच्चों की परफॉर्मेंस पर खराज तहसीन। डिप्टी कमिश्नर ने बच्चों, असातिज़ा और अहलकारों में तारीफी असनाद तकसीम की। यौम आज़ादी तकरीब में सिविल सोसाइटी समेत तलबा ने भी भरपूर शिरकत की। गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले तलबा की भरपूर हौसला अफजाई की गई। मुल्तान के तारीखी इदारे एमरसन यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन की क्लासेस जारी। तलबा 5 सितंबर तक इंटरमीडिएट में दाखिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में तलबा की रहनुमाई के लिए एडमिशन ऑफिस भी कायम कर दिया गया है। तफसीलात देखेंगे शकील सुल्तान की रिपोर्ट में। मुल्तान के तारीखी इदारे में पढ़ाई के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए अच्छी खबर। एमरसन यूनिवर्सिटी में इंटरमीडिएट क्लासेस के दाखिले जारी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने वजाहत की है कि एमरसन कॉलेज को जामिया का दर्जा मिलने के बाद इंटरमीडिएट क्लासेस खत्म नहीं हुई, बल्कि जदीद सहूलियात के साथ मुनासिब फीस पर क्लासेस जारी हैं। तलबा 5 सितंबर तक वेबसाइट पर और कैंपस में आकर दाखिले की दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। साल हम पिछले साल से कई गुना ज़्यादा दाखिले करेंगे और हमारी फीस भी दीगर प्राइवेट इदारों से बहुत कम है। 13,700 हमारी आर्ट्स की फ़ीस है और साइंस की और ICS की हमारी 14,700 है और ये बहुत कम फ़ीसें हैं और उसमें एक अच्छी जो है ना तालीम जो है ना ऑफ़र कर रहे हैं हम। और एडमिशन का ये है कि हम ऑनलाइन भी और मैनुअल भी यहाँ पर हमारे दाखिले हो रहे हैं। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद रमजान का कहना था कि इदारे का हर स्टूडेंट इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की तमाम सहूलियात से मुस्तफीद हो सकेगा। कॉलेज में गुज़िश्ता साल की निस्बत इस मरतबा 2 गुना दाखिले ज्यादा हुए हैं। फैकल्टी हमने को तकरीबन 56 PhDs अभी सिर्फ सिलेक्ट किए हैं, तो बाकी भी करेंगे, तो वही सारे इंटरमीडिएट को भी पढ़ाएंगे। तो क्वालिटी तो खुद ब खुद इम्प्रूव होती है जब आपके टीचर्स इम्प्रूव होते हैं, आपकी क्लासरूम्स इम्प्रूव होते हैं, आपको इंटरनेट की फैसिलिटी मिलती है, यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी की एक्सेस आपको मिल गई है, यहाँ जो ई रोज़गार है, ई रोज़गार के लिए ज़ाहिर है इनको भी वही फैसिलिटीज़ हैं। दूसरी बात ये कि ये मिसकंसेप्शन है कि एमरसन यूनिवर्सिटी ने जो है ना वो इंटरमीडिएट को पीछे डाल दिया। मैट्रिक के बाद कॉलेज की पढ़ाई तलबा की जिंदगी का अहम दौर होता है। असातिज़ा का कहना था कि तलबा वक्त के ज़िया से बचें और इंटर क्लासेस में अपना दाखिला यकीनी बनाएं। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। इसी के साथ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।